Hello, in this video we will learn about the chapter 6 electromagnetic induction, class 12 standard physics. So let's begin. First we will understand what is in by electromagnetic induction. यहाँ पर देखेंगे there are two scientists, one is the Michael Faraday and second one is Joseph Henry. Basically both have conducted 1830 the experiment on electric currents and magnetic field. So whatever the experiment they have performed that we are going to study in this chapter. Now, first, what is meant by the electromagnetic induction? The phenomena in which the electric current is generated by the varying magnetic field that is called as electromagnetic induction. मतलब क्या होता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से किसी कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. It means that whenever there is a changing magnetic fields it produces electric current, and this is concept is called as the electromagnetic inductions. So this concept of electromagnetic induction, it means that the producing the electric current due to the varying magnetic field. This we will going to study in detail in this chapter. So let's start with the experiment performed by the two scientists Michael Faraday and Joseph Henry. So experiment number 1. तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? Basically they have taken one coil and this coil is connected with the galvanometer. As you know the function of galvanometer. Galvanometer क्या करता है? It is showing the deflection. It means that it is showing the presence of current in the circuit or also its direction. तो गैलोमीटर क्या करता है? सर्किट में करंट है या नहीं, या फिर है तो कौन सी डायरेक्शन में है वो दिखाता है. तो यहाँ पर हमने एक कॉइल लिया, कॉइल को हमने गैलोमीटर को कनेक्ट कर दिया. गैलोमीटर इज पॉइंटर, इट इज देयर. Either it is showing the deflection, it means that the current is there. If it is not showing the deflection, it means that there is a no current in the coil. तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? तो सबसे पहले इस कॉइल के नजदीक हमने मैग्नेट को लाया. मैग्नेट का कौन सा भी पोल आप लेके आओ. सो वेन एवर द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, जब भी मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ आता है, दैट टाइम द गैलोमीटर शोइंग डिफ्लेक्शन. तो गैलोमीटर ने क्या कर दिया? डिफ्लेक्शन दिखा दिया. तो जब तक मैग्नेट मोशन में था टूवर्ड्स द कॉइल, दैट टाइम इट वाज शोइंग द डिफ्लेक्शन. जब भी मैग्नेट नजदीक आया और स्टेबल हो गया, हमने वहां पर वैसे ही रखा, तो उस समय कॉइल जो गैलोमीटर है वो फिर से जीरो पे आ गया, नल डिफ्लेक्शन दिखाया उसने. तो यहाँ पर अगर नल डिफ्लेक्शन है सेंटर में और यहाँ पर हो सकता है इसकी डायरेक्शन दिखाएगा. तो मैग्नेट जब नजदीक कॉइल का लाया तो उस समय गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो दिखाया. इट मींस दैट देयर इज नो करंट. अब माइकल फैराडे ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया. क्या किया कि इस मैग्नेट को कॉइल के दूर लेके गया. नाउ व्हेनेवर द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, the galvanometer is showing again deflection in opposite direction. Now he was thinking that why this is so happened. Galvanometer जब जो है वो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया when the magnet is going away from the coil. जब कॉइल से दूर मैग्नेट चला जा रहा था, that time also it was showing the deflection but in opposite direction. और फिर दूर लेके जाके फिर से मैग्नेट को स्टेबल कर दिया. तो जब ये मैग्नेट स्टेबल हो गया तो गैलोमीटर फिर से जीरो डिफ्लेक्शन पे आ गया. मतलब फिर से उसने ये सब बताया कि कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. तो माइकल फैराडे एंड हेनरी बेसिकली वेयर performing this experiment at different positions, and they were not able to understand why this is happening. And this is happening because whenever there is a relative motion between the coil and magnet, that time the electric current is generated. अगर हमने मैग्नेट को स्टेबल रख दिया और कॉइल को मोशन में लाया, then also it was showing the deflection. But whenever the magnet or the coil both are stable, that time it was not showing deflection. तो ऐसा क्यों हो गया? Why this also happened? So they were thinking about it and they understood that when the coil or the magnet is in motion, that time there is a varying magnetic field. मतलब मैग्नेट मोशन में है या फिर कॉइल मोशन में है, उस समय क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है. जब भी वो नजदीक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दूर चले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. दैट वी कॉल ए चेंज. चेंज का मतलब या फिर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना या फिर ज्यादा होना. तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होना, दिस प्रोसेस बेसिकली प्रोड्यूसिंग द करंट. अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम मैग्नेट स्टेबल रखते हैं कॉइल के नजदीक, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो होती है लेकिन वो कांस्टेंट होती है.
और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर सकती. दिस वाज द कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2. यहाँ पर फैराडे ने क्या किया, इसी कॉइल को फिर से गैलोमीटर पे कनेक्ट कर दिया और दूसरी एक कॉइल लेके आ गया. अब इस सेकंड वाली जो कॉइल है उसे हम C2 कहेंगे और जो फर्स्ट वाली कॉइल है वी विल कॉल इट एज द C1. C1 एंड C2 देयर आर टू कॉइल्स. यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल है C1 एंड C2. यहाँ पर पहले कॉइल को हमने गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया है और सेकंड कॉइल है इसको हमने गैलोमीटर से नहीं कनेक्ट कर दिया. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉइल है C2 है उसको हम क्या करेंगे, कॉइल C1 के नजदीक लाएंगे. फिर से यहाँ पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. जब भी कॉइल को C2 को दूर लेके जाते हैं तभी भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है. लेकिन जब भी कॉइल स्टेबल रखते हैं हम, दैट टाइम द गैलोमीटर इज नॉट शोइंग डिफ्लेक्शन. इसका मतलब जब भी दोनों में से कोई भी कॉइल या फिर दोनों कॉइल जब भी मोशन में है तब गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है. It means that the relative motion between the C1 and C2, coil C1 and C2, it is a producing the current, it is a generating the current in the coil. तो कॉइल जब भी मोशन में है तब तो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तब तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. लेकिन जब भी दोनों स्टेबल है तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा. So the bar magnet in the experiment 1 is replaced by the coil C2 which is connected to the battery. The steady current in C2 sets up the steady magnetic field. When C2 is moved towards C1, the galvanometer records the deflection, and this indicates the current induced in the coil C1. Now, when C2 is moved away, there is a deflection in opposite direction, and deflection lasts as long as the coil C2 is in motion. When C2 is fixed and C1 is moved, the same effect was recorded. So this was the actually conclusion that relative motion between the two coils is responsible for the inducing the current. Let's move to the third experiment. Here we will again going to take the two coils. यहाँ पर हम एक कॉइल को क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कॉइल को हम क्या करने वाले, स्टेबल रखने वाले हैं. बट द वन कॉइल विल बी कनेक्टेड टू द गैलोमीटर. इसमें से एक कॉइल को हम गैलोमीटर कनेक्ट करेंगे और दूसरे कॉइल को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. अब यहाँ पर हमने देखा कि अब दोनों भी कॉइल है वो स्टेबल पोजीशन पे है और यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल को हमने गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया. और यहाँ पर हमने की बिठा दी और अब हमने क्या किया कि की को ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया. तो जब भी हम ऑन ऑफ करते हैं तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है. गैलोमीटर शोइंग द डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑन ऑफ स्विच ऑन दैट टाइम द गैलोमीटर शोइंग डिफ्लेक्शन. लेकिन हमने अगर बंद करके रखा है तो बंद होने के बाद कुछ समय के बाद गैलोमीटर अगेन जीरो पे आता है. अगर हमने फिर से स्विच ऑन किया तो फिर से डिफ्लेक्शन मिल गया. लेकिन वैसे ही हमने स्विच ऑन ही रखा तो अब गैलोमीटर फिर से जीरो पे आ गया. इसका मतलब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है. इट मींस दैट देयर इज अ current in the coil when the electric current is going going and again increasing decreasing, that we can say increasing decreasing. क्योंकि हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता रहता है, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. तो when the electric current is varying, that time the magnetic field is varying and the magnetic field basically induced in the second coil. So this was actually third experiment that was performed by the Faraday and Henry. अगर ये जो डिफ्लेक्शन है वो और ज़्यादा होता है अगर इसके हम कॉइल के अंदर जो है वो बेसिकली आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो. So these are the two experiments that was performed by the Faraday and Henry.